Now we'll start with the cross pollination. Cross pollination is by means of abiotic factor and biotic factor. Bio is a living, that is living factor. Abiotic is non-living factor. Abiotic and biotic. This abiotic is by means of air or wind, and here it is by means of water. So one term is there, anemo. Anemo, a term I think I have told you. Anemo is wind. Philly, Philly is loving. So we call this pollination as a this phenomena is anemophily, और flower को करेंगे anemophilic flower, and here we are hydrophily, that is by means of water. Then in the living we have a by means of we call it the zoophily. Zoo means by means of animals. Animal includes insects. Animal includes birds. Animal includes bats. Animal includes mollusks, and so on. Once again, this phenomena of where the insect is known as entomophily. Entomophily. Birds, ornithophily. Bats, chiropterophily. Chiropterophily. Mollusk, malacophily. Malacophily. Malaco का मीनिंग होता है mollusk. Chiroptera, patera is a wing. न्यूकमर नो विंग होता है. काइरोप्टेरा एक ऑर्डर है जिसमें बैट्स आते हैं, बैट्स फ्लाइंग फॉक्स आते हैं. तो दिस इज काइरोप्टेरा. नोट डाउन दिस. Raise your hands when you will be completing your work. Now we are doing what are the features? What are the feature of anemophily? Anemophily or anemophilic flower. Then hydrophilic flower. Then entomophily flower. And ornithophily flower. द बेसिक, एक आप लोग को बेसिक बताते हैं कि क्या है जो एक कॉमन सी चीज़ है जिसको आप रिटेन करोगे. ये देखिए, ये आगे पोलन हवा से उड़ेंगे, ये विंड से उड़ेंगे और दूसरे
फ्लावर पे गिरेंगे, तो जब विंड से जाएंगे तो ये छोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर होना चाहिए इनका, ड्राई होने चाहिए, इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स कोई बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई कलर की ज़रूरत नहीं है, कोई इंसेक्ट है इसको अट्रैक्ट नहीं करना है, कोई बर्ड बर्ड ने उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, कोई नेक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है इन फ्लावर में। सिमिलरली यहाँ भी कोई नेक्टर की ज़रूरत नहीं है, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, but it should be unwettable. They are like, we call the hydrophily or hydrophilic flower और anemophilic almost एक जैसे होंगे, बट उनमें अनवेटेबल है, भीगे ना। Whereas entomophily and ornithophily flowers, they are opposite to them. लार्ज होने चाहिए, कॉन्स्पिक्वस होने चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, सेंट होना चाहिए, ओके, ब्राइटली कलर होने चाहिए, brightly colored होने चाहिए. So these are the feature of this. This is the basic thing you should know, that what is the difference between anemophilic and hydrophilic. anemophilic में मेन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अनअवेटेबल का है. और इधर एंटोमोफिली में इसका ऑपोजिट है दोनों के, कि लार्ज होने चाहिए, दे आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्वस, लार्ज नंबर, ड्राई, ऐसे इनके पोलन भी, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, ये दोनों बोथ the anemophilic and hydrophilic, whereas the entomophily and ornithophily are almost opposite to the first two one. So basic difference आपको पता चल गया, no need to note down, इसके नोट करने की ज़रूरत नहीं है. Now we are doing the details of this. We are coming to anemophilic flower. anemophilic flower वो फ्लावर जिनमें एयर या विंड से पॉलिनेशन होगी, ट्रांसफ़र होगी. तो पहला जो फीचर आ गया इनका, फर्स्ट फीचर, जैसा मैंने बताया कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर शुड बी स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्वस, odorless, nectarless, and colorless. This is about the flower, कि फ्लावर ऐसा होना चाहिए. उसके जो कैलेक्स एंड करोला हैं, या तो वो रिड्यूस्ड होते हैं या एब्सेंट. कैलेक्स एंड करोला रिड्यूस्ड एब्सेंट, क्योंकि कैलेक्स करोला की जरूरत नहीं, वो अट्रैक्टेंट नहीं, शो ही नहीं होने चाहिए. मेल फ्लावर बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि बहुत दूर तक जाना होता है इन्होंने. मेल फ्लावर का नंबर ज़्यादा होता है. मोर. देन पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, ऑलमोस्ट ऐसे ही होने चाहिए जैसे फ्लावर है, कि दे शुड बी स्मॉल, लाइट, ड्राई एंड डस्टी. स्मॉल, लाइट, ड्राई एंड डस्टी. देन जो पोलन है, pollen grain, they should be produced in large number. They should be produced in large number. जैसा हम बात करते हैं, भांग का प्लांट है, कैनबिस प्लांट प्रोड्यूस 5 लाख pollen grain. 5 लाख pollen grains. और जो फ्लावर हैं वो एक्सपोज होने चाहिए एयर के, तभी तो हवा से उड़ते हुए उस में वो गिरेंगे. फ्लावर
should be exposed, should be exposed. तो ये फीचर होने चाहिए अनीमोफिलस। अनीमोफिलस मैंने बताया, अनीमो एयर होता है, विंड होता है, एंड इसको हम कर सकते हैं ग्रासेस। देखो क्या क्या एग्जांपल है। कैनबस तो लिखा ही है मैंने, भांग, मेज, पाम, शुगर केन एंड बैम्बू। ये these are the examples. So once again just have a look on this. Is a very important that you should know कि कैसे वो फ्लावर होने चाहिए जो हवा में उड़ेंगे, हवा से पॉलिनेशन होगा। वो छोटे होने चाहिए, इनकॉन्स्पिक्यूअस, उनको ये जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर से दिखे हो। odorless, nectarless and colorless. Calyx and corolla should reduced or absent. मेल फ्लावर नंबर शुड बी मोर, क्योंकि मेल फ्लावर हजार हजार मेल फ्लावर जाएगा तो उसमें कहीं चांस है कि एक फ्लावर जाके पॉलिनेट करेगा। देन पोलन ग्रेन का साइज भी छोटा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, डस्टी होना चाहिए, एंड इट शुड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। जैसा कैनबिस में 5 लाख पोलन ग्रेन्स हैं। फ्लावर शुड बी मोर एक्सपोज्ड। द एग्जांपल्स आर ग्रासेस, कैनबिस, मेज, palm, sugarcane, bamboo. Note on this. So it was about the anemophilic flower, and this process is known as anemophily. Now we are moving to हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिलिक फ्लावर। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफिलिक के भी वही फीचर होते हैं फ्लावर के जो अनीमोफिलिक के हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा है कि पहले तो वही आ गया, हाइड्रोफिलिक फ्लावर में फ्लावर्स आर स्मॉल, colorless, flowers are small, colorless, inconspicuous, odorless, nectarless.
Second is calyx and corolla. Calyx and corolla unwettable. Calyx and corolla unwettable. Pollen grains stigma. Pollen grain stigma again unwettable. Stigma long and sticky. Stigma long and sticky. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्या चीज़ है कि एक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि एक कि वाटर लिली the pollination is चार ऑप्शन थी तो वाटर लिली अदरवाइज इट इज एक्वाटिक वाटर लिली एक्वाटिक है तो सभी बच्चे कहेंगे द पॉलिनेशन इज हाइड्रोफिली नो हियर द पॉलिनेशन इज एंटोमोफिली ये पानी से बहुत ऊपर रहता है तो इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करते हैं ऑल्दो इट्स अ एक्वाटिक प्लांट तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कंपटीशन सो आइए पहले हाइड्रोफिली के बारे में बात करते हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं अनीमोफिली के साथ तो अनीमोफिली और हाइड्रोफिली तकरीबन सेम हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं है सिर्फ ये है कि दे शुड हैव अनवेटेबल ये अनवेटेबल है बाकी वही वही कोई कॉन्स्पिक्यूअस टेस्ट की जरूरत नहीं है कोई नेक्टर की जरूरत नहीं है कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं नोट ऑन दिस and after noting down immediately you raise your hand मिस्टर न्यू कमर्स मेरे साथ नहीं लिखा करो पहले मुझे लिखने दिया करो फिर करिए आपका हैंड पहले ही खड़े कर लेते हो आप तो यहाँ देखिए तो ये फ्लावर जो एक्वेटिक जो जहाँ हाइड्रोफिली होती है वेलिसिनेरिया 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 जोस्टेरा and Ceratophyllum 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 देखिए क्या होता है इसमें ये जो फ्लावर हैं प्लांट फ्लावर हैं इनमें कुछ को हम बोलेंगे कि इनमें हाइड्रोफिली होती है और कुछ को कहेंगे एपी हाइड्रोफिली एपी इज अपॉन हाइपो इज बिलो एपी इज अपॉन एपिडर्मिस जैसे हाइपो बिलो hypohydrophily and epihydrophily epi is upon that is below water when the pollination takes place below water when the pollination takes place above water surface it is epihydrophily so epihydrophily यहाँ जो
एपीहाइड्रोफिली से वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया की एग्जांपल बहुत ही, वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया पानी के ऊपर उसकी पॉलिनेशन होती है, वेयर एज जोस्ट्रा एंड सिरेटोफाइलम it is below water. So note on this. Hypohydrophily and epihydrophily. So we should move now to next, but before moving to the next, हम आपको इसकी एक डायग्राम दिखाते हैं. ये देखिए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Anyway, see this diagram here. This is a वेलिसिनेरिया. ये देखिए, व्हाट इज देयर, ध्यान से देखिए, ये वेलिसिनेरिया में ये सरफेस है, वाटर सरफेस है. दो टाइप के फ्लावर हैं. पिस्टिलेट, पिस्टिलेट होता है फीमेल फ्लावर, और स्टेमिनेट होता है मेल फ्लावर. Right? So what happens, these male flower, they don't reach the male plant does not reach the surface. It releases these male flower, and then the male flower come on the surface of the water. Likewise, it is female flower, pistillate flower are there, they are coming and fertilizing. After fertilization, it coils back to inside water, after fertilization. So this is in case of Vallisneria. फिर से देखिए ध्यान से, वेलिसनेरिया में इस टाइप से एक मेल ब्रांच होती है, फीमेल ब्रांच होती है. तो वो मेल ब्रांच नीचे ही रहती है सरफेस के, मेल फ्लावर को रिलीज करती है, वाटर लेवल तक वो पहुंच जाते हैं मेल फ्लावर. और ये फीमेल ब्रांच लंबी होती है लेकिन इज क्वाइल्ड है. तो कई बार इसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो यू कैन ड्रॉ इट, जस्ट जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस. आप इसको
This is the surface of water. This is a staminate male flower है. This is pistillate. So male flower are floating, and while floating with the help of water, since it is hydrophily, it goes there. So again this is a coiling drought. Here are roots, Vallisneria drought. सर रेड डॉटेड लाइन को आपने किससे डिनोट किया है? This is the staminate, this is pistillate, and here is the water level, that is surface of water, that is by red dotted lines. This is coiling, this is Vallisneria, this is pistillate, this is surface of water, this is pollination, this is flower, male flower, this is staminate. So it was about the, बहुत ही अच्छी तरह आपने समझ लिया कि पानी से और हवा से कैसे पॉलिनेशन होता है और क्या क्या उन फ्लावर्स के फीचर हैं. अब हम बात करेंगे एंटोमोफिलस. एंटोमोफिलस फ्लावर कौन से होते हैं, क्या क्या फीचर हैं, ये तकरीबन उनसे अलग होंगे. देयर फ्लावर शुड बी लार्ज. फ्लावर कैसे होंगे, लार्ज होंगे. फ्लावर शुड बी लार्ज. Flower should be large, they should be conspicuous. Conspicuous. Flower should be large, bright. Bright colored होने चाहिए. Bright colored. Showy. दिखे उनका. So the showy to attract insect. To attract insect. This is the first feature which is opposite to the first two, that is anemophilous and hydrophilus. Petals large and attractive. Petals large and attractive. अगर ना हो तो क्या होगा, अगर ना हो तो कोई और पार्ट अट्रैक्टिव हो जाता है, जैसे कि ब्रैकेट इन केस ऑफ ब्रैकेट बोगनविलिया में. अगर आपने देखा होगा बोगनविलिया दूर से लगता है कि हम बोलते हैं फ्लावर है, तो वो ब्रैकेट है, पेटल नहीं है वो. बोगनविलिया, बोगनविलिया में ब्रैकेट है इफ एब्सेंट, अदरवाइज इट शुड बी लार्ज एंड बोगनविलिया. देन या फिर वो ब्लूम करे इन बंचेस. अगर छोटे हैं तो ब्लूम इन बंचेस. ब्लूम इन बंचेस. देखिए क्या है ब्लूम इन बंचेस, क्या लिखा मैंने, सनफ्लावर. सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, पर बहुत सारे फ्लावर बनाते हैं उसको. छोटे छोटे डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, वो आपस में मिलते हैं और बनाते हैं उसको. तो या तो फिर वैसे होने चाहिए, तभी तभी इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे.
different color attract different color attracts different insects. डिफरेंट कलर अट्रैक्ट, जैसे जैसे मॉथ है, मॉथ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाइट, तभी रात को दिखते हैं मॉथ, क्योंकि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो है वो वाइट कलर के होते हैं, वाइट. रेड फॉर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई रेड. बट ये रेड जो जो ये बीज हैं, दे आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड. दे यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हेंस रेड कलर अपीयर्स ब्लैक इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. जो रेड है इट अपीयर्स ब्लैक. in ultraviolet radiation by honeybee. Sometimes this type of questions are asked. तो देखिए पहला तो ये आ गया कि लार्ज होने चाहिए, कंस्पिक्वस होने चाहिए, ब्राइट कलर होने चाहिए, शोई होने चाहिए टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. पेटल लार्ज या अट्रैक्टिव होने चाहिए. नहीं हुए तो उस केस में जैसे बोगनविलिया में ब्रैकेट कलर्ड हो जाती है. ब्लूम इन बंची जैसे सनफ्लावर है. Different colors attract different insects. For example, moth is attracted towards white, butterfly is towards red, whereas जो हनी बी हैं वो उनको रेड नहीं दिखता, उनको रेड ब्लैक दिखता है. सो ऐसा ही जो टाइम शुड बी देयर. जैसे मॉथ हैं, मॉथ पॉलिनेशन करते हैं आफ्टर सनसेट, तभी शाम को दिखते हैं, राइट. और ऐसा ही ऑर्डर का है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए अट्रैक्ट होते हैं. जैसे ऑर्डर रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया की तरफ कैरन फ्लाइज होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि रेफ्लेसिया अनप्लीजेंट स्मेल देता है, रॉटन मीट की तरह, रॉटन मीट की तरह उसकी स्मेल होती है, नॉट फ्रेगरेंस. और दूसरे जो कुछ हैं जो स्पेसिफिक, जैसे जैस्मिन रोज है, उनकी प्लीजेंट स्माइल होती, प्लीजेंट फ्रेगरेंस होती है. फ्रेगरेंस. आई थिंक दीज. हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो एडिबल है, एडिबल है, एडिबल होने चाहिए, एडिबल भी होने चाहिए. जैसे अगर अगर कोई इंसेक्ट चाहता है तो वो उनको खाता भी है, उसको एडवांटेज भी है. जैसे ये हनी बी जाती हैं, हनी बी पोलन भी खाती हैं और नेक्टर भी खाती हैं. तो देन एडिबल खाने वाला, nectar and pollen, nectar and pollen. And last is they should have pollen kit. These are 8 points, note down them. सर प्लीज 6 पॉइंट रिपीट करना. First point is the flower large, conspicuous, bright color, showy, attract insects. Second, the petal large and attractive, that should be like bougainvillea का bracket है. Third is bloom in bunches, that is sunflower. Fourth is a different color attracts different insects. Moth, they are attracted towards white. Butterfly, they are attracted towards red. But in case of honeybee को red appears black because they use ultraviolet radiation. Moth, it's more active during sunset, after sunset. After sunset, it is more active, hence it appears red. Sixth is the odor, specific odor की वजह से specific insects
अट्रैक्ट होते हैं. Most of the insects, they are attracted towards jasmine and rose because of their pleasant fragrance, whereas the carrion fly, they are attracted towards Rafflesia because Rafflesia gives rotten meat appearance. Then the seventh point is edible nectar and pollen. Like honeybee को एडिबल नेक्टर और पोलन ग्रेन्स चाहिए, खाते हैं उनको, ये रिवार्ड मिलता है उनको पॉलिनेशन का. ये क्वेश्चन 2-3 बार कंपटीशन में पूछा है. देन एट्थ इज द पोलन किट. सो इट वाज अबाउट द एंटोमोफिलस. पहला था अनीमोफिलस, सेकंड किया हमने हाइड्रोफिलस, थर्ड इज एंटोमोफिलस. एंटोमोफिलस इज ऑपोजिट टू द फर्स्ट टू वन. Now coming to ornithophilus. Ornithophilus. Ornithophilus हो गया by means of birds. Ornitho होता है birds. Few birds who are having small size birds with a long beaks. These flowers should have abundant nectar and should have edible part. खाने के लिए आएंगे ये. एडिबल पार्ट होना चाहिए फ्लावर में. ब्राइटली कलर्स. फ्लावर शुड बी ब्राइट कलर. ब्राइट कलर विद leathery floral parts. For example, smallest bird is hummingbird.
This is about the ornithophilus. Then we have a Chiropterophily. Chiropterophily और Chiropterophilus flower. Patera wing होता है, तो it is by means of bats and flying fox. Bats and flying fox. ये dull colored, with strong fermenting or fruity odor, abundant nectar and pollen grain. Example of this tree is Adansonia. Sonia, Adan. Commonly it is known as baobab. Note on this.